Shalom. Praise the name of the Lord. Hallelujah. सबको जय यीशु मसीह की. Hallelujah. Lord Jesus, we bless you. Hallelujah. We glorify you, Jesus of Nazareth. Lord, we praise your holy name. Lord, we magnify you. Hallelujah. Hallelujah. Shalom, shalom, everyone. Greetings in Jesus' wonderful, matchless, glorious, and absolutely awesome name. Hallelujah. Dhanyavad Yeshu Masih. Lord, we bless you. We praise you, King of glory. We magnify your holy name, Lord. We magnify your holy name. Lord, we magnify your name. Magnify your name. Magnify. Lord, we magnify your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Lord, we bless you. Lord Jesus, we praise you. Lord Jesus, we glorify you. Hallelujah. सबको जय यीशु मसीह की. हालेलुया. इंद्रप्रीत सिंह जी जय मसीह की. सुनीता कौर जी फ्रॉम ब्रिटेन जय मसीह की. साहिल फ्रॉम पाकिस्तान जय यीशु मसीह की. विनोदनी क्रिश्चियन फ्रॉम कनाडा जय यीशु मसीह की. ब्रदर विलियम मसीह फ्रॉम ब्रिटेन जय मसीह की. दविंदर कुलार फ्रॉम इंग्लैंड जय मसीह की. मनोहर लाल जी दिल्ली जय मसीह की. हरजीत सिंह जी जय यीशु मसीह की. परमेश्वर का हाथ आपकी पत्नी रजनी के ऊपर है. हालेलुया. एंजेला ड्रोच फ्रॉम ब्रिटेन जय मसीह की. अमरजीत कौर फ्रॉम जलंधर जय मसीह की. रवि प्रकाश गुप्ता जी फ्रॉम मुंबई जय मसीह की. ब्रदर कुंदन शाह फ्रॉम दिल्ली जय यीशु मसीह की. हालेलुया. लॉर्ड जीसस, वी ब्लेस योर नेम. We praise your name, Lord God. Hallelujah. आइए सब मिलके प्रार्थना करें. प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें. प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, क्योंकि वो भला है. हालेलुया. उसकी करुणा सदा की है. उसकी महिमा करें. हालेलुया. स्तुति करें. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. King of glory, we bless your name. We exalt your name, King of glory. Hallelujah. We bless your holy name, holy name. We bless your holy name. We praise your holy name. We praise your holy name. Father, we praise your holy name. We praise your holy name. Avinu Malachinu, we praise you. Avinu Malachinu, we praise you. Avun Dwashmayo, we praise you. Hallelujah. We bless your name. Bless your holy name. Avinu Malachinu, we bless your holy name. Yahushua HaMashiach, King of glory, we bless your holy name. Yahushua HaMashiach, we bless your holy name. Yahushua HaMashiach, we bless your holy name. Yahushua HaMashiach, we bless your holy name. Lord, let the fragrance of your name
fill our hearts and our souls. The fragrance of the name of Jesus fill even every genome, every DNA and RNA in us. Let the fragrance of your name flood each cell, tissue and ligament and bone marrow that we are composed of. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो, तेरे लहू की कुदरत, तेरे लहू का अभिषेक, तेरे लहू का मसा, तेरे लहू की कुवत हमारे अंदर समाए खुदावन. Let the blood of Jesus permeate our whole being, saturate every little fiber that we are composed of. Hallelujah. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे हजूर में आते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तेरी मदासराई करते हैं खुदावंद, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं. हालेलुया. तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो. धन्यवाद धन्यवाद. हम तेरी स्तुति करते हैं खुदावन, तेरी स्तुति करते हैं. प्रभु हमारे दिलों को अपनी हजूरी से भर, अपनी कुव्वत से भर, अपनी सामर्थ से भर, अपनी पवित्रताई से भर. छू खुदावन प्रभु. द जॉय ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के आनंद से हमें भर. Fill people with the joy of the Lord. Hallelujah. Fill people, Lord, fill your people with the joy of the Lord. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो. Hallelujah. Lord, as we meditate on your word, open our eyes, open our hearts. Lord, give us receptive hearts to receive your word. तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो खुदावन. हम तुझे जलाल देते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु. हालेलुया. महान प्रभु तेरा धन्यवाद. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो जीवित परमेश्वर. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु जी हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं. स्पीक टू अस लॉर्ड, स्पीक टू अस फ्रॉम योर लिविंग वर्ड. हम अपने आप को तेरे आगे दीन करते हैं खुदावन, हलीम करते हैं, अपने आप को आपके चरणों में खाली करते हैं खुदावन जी. अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा हमें छूइए, छूइए खुदावन जी. अपनी कुदरत के द्वारा हमें छूइए. हालेलुया. हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु. अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातें कीजिए. यीशु मसीह आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. आई ग्रीट यू ऑल इन जीसस वंडरफुल नेम. सबको जय यीशु मसीह की. कुछ लोगों को गुड मॉर्निंग. हालेलुया. और आप में से कुछ लोगों को गुड आफ्टरनून और कुछ लोगों को गुड इवनिंग. और सबको जय यीशु मसीह की. हालेलुया. परमेश्वर के वचन में से कुछ अद्भुत बातों पे हम मनन करेंगे. छोटा सा संदेश दूंगा मैं, और मैं चाहता हूँ आप ध्यान से अपनी बाइबल खोलिए. अपनी बाइबल संग में रखें, नोटबुक रखें, अपनी बाइबल खोलिए और टर्न टू बुक ऑफ एक्सोडस. निर्गमन की पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस. और मैं आपके लिए 24 चैप्टर में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ. हालेलुया. एक्सोडस चैप्टर नंबर 24. निर्गमन की पुस्तक, उसका 24 चैप्टर, उसकी पहले वचन से मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ता हूँ. एंड ही सेड अनटू मोसेस, कम अप अनटू द लॉर्ड, thou and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel, and worship ye afar off. And Moses alone shall come near the Lord, but they shall not come nigh, neither shall the people go up with him.
neither shall the people go up with him. And Moses came and told the people and the words of the Lord and all the judgments, and all the people answered with one voice and said, all the words of the Lord he hath said we will do. And Moses wrote all the words of the Lord, and rose up early in the morning and builded an altar under the hill and the 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास मूसा से बातें की। परमेश्वर यहोवा पहाड़ के ऊपर उतर आया है और उस पहाड़ को आग लगी है और उस पहाड़ के चारों ओर बहुत गहरा अंधेरा है और बिजलियां कड़क रही हैं और परमेश्वर की पवित्रताई ने उस पहाड़ को घेरा डाला है। और यहाँ पे लिखा है, चौथा वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा मोजेस बिल्डेड एन ऑल्टर अंडर द हिल, उस पहाड़ के नीचे। पहाड़ के नीचे का मतलब पहाड़ के एट द फुट ऑफ द माउंटेन नहीं है, पहाड़ के अंडर मोजेस एक ऑल्टर बनाता है। तो यदि आप ध्यान से वचन को देखेंगे, जब यहोवा परमेश्वर की हजूरी सिनई पहाड़ पे उतरी, यहोवा परमेश्वर के प्रताप ने, उसकी पवित्रताई ने, यहोवा परमेश्वर की आग ने पहाड़ को घेरा डाला, तो वो पहाड़ हवा में लेविटेट करने लगा। वो पूरा माउंट, पहाड़ में जो माउंट का टॉप था वो हवा में उड़ गया ऊपर, स्टार्टेड टू लेविटेट, और इजरायली प्रजा उस पहाड़ के नीचे आ गई। यहोवा उस पहाड़ के ऊपर और वो पहाड़ मानो हवा में तैर रहा है, और उस पहाड़ की चोटी के नीचे इजरायली प्रजा है। यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा से शादी कर रहा था। 10 कमेंडमेंट कतूबा है, हिब्रू में कतूबा का मतलब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। वो बनी इसराइल के साथ शादी कर रहा था, लेकिन इसराइल ने पहले ही जनाकारी कर ली, अडल्टरी कर ली और बछड़े की पूजा करने लगे। खैर, ये दूसरा वाक्य है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो यहोवा परमेश्वर ने 70 बुजुर्गों को, जो इज़राइल के 12 गोत्रों के 70 पुरनिये थे, और मोजेस को, मूसा को, उसके भाई हारून को, और नदाब और अबीहू उनके 2 बेटे जो याजक थे। तो अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ परमेश्वर के कलाम में से। इसके अगर आप पढ़ेंगे 8 वचन से, खैर अगर 5 से 8 तक पढ़ेंगे तो मोजेस ऑफरिंग देता है, ब्लड ऑफरिंग, और मैं इसके 9 वचन को अब आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एक्सोडस 24 वर्स नंबर 9। Then went up Moses and Aaron, Nadab, Abihu, and 70 of the elders of Israel। उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए जहाँ पे यहोवा की हजूरी उतरी थी। हाउ? होली स्पिरिट उनको रैप्चर करके, होली स्पिरिट ट्रांसलेट करके ले गया यहोवा की हजूरी में। अब देखें ध्यान से 10th वचन, एंड दे सॉ द गॉड ऑफ इजराइल and there was under his feet as it were paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness। हालेलुया। मोजेस का ब्रदर एरन, एरन के 2 बेटे नदाब, अबीहू और इजरायलियों के 70 पुरनिये उस पहाड़ पे चढ़ गए, और उन्होंने दे सॉ गॉड ऑफ इजराइल, उन्होंने यहोवा परमेश्वर को देखा। 70 लोगों ने, और मोजेस ने, एरन ने, और उस एरन के 2 बेटों ने। 74 पीपल ऑल टुगेदर सॉ गॉड ऑफ इजराइल। और लिखा है कि जो स्टोन, जो नीचे पेव्ड वर्क जो था सैफायर स्टोन का था। ये बहुत डीप बातें हैं। ये सैफायर स्टोन की जो बॉडी है, दे आर ऑल एंजेलिक बीइंग्स, एंड एज इट वर द बॉडी ऑफ हेवन इन इट्स क्लियरनेस। पूरा स्वर्ग जैसे खुला है। हालेलुया। पूरा स्वर्ग खुला है।
इन 70 पुरनियों ने, मोजेस और एरन ने और एरन के 2 बेटों ने यहोवा को देखा। यहाँ लिखा दे सॉ गॉड। यशाया नबी की किताब 6 अध्याय के पहले वचन में यहोवा को देखता है। आई सॉ द लॉर्ड लिफ्ट हाई एंड लिफ्टेड अप। यशाया कहता है, यशाया 6 के 1 में, आई सॉ द लॉर्ड हाई एंड लिफ्टेड अप। और अगर आप आमोस नबी की पुस्तक पढ़ेंगे, आमोस की पुस्तक 9 अध्याय के पहले वचन में, एमस इज सीइंग द लॉर्ड इन द टेम्पल बाय द ऑल्टर। आमोस परमेश्वर के प्रताप को देखता है। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल में एक एंजल ऑफ द लॉर्ड है जिसे हामिल अल मलाक कहा गया है। मैंने आपको बहुत शिक्षा दी है इसके ऊपर, हामिल अल मलाक पे। ये जो यहोवा की हजूरी का दूत है, ये यहोवा की मैनिफेस्टेशन है। यहोवा परमेश्वर का प्रगटीकरण है। यहोवा परमेश्वर का प्रतीक है, प्रतिबिंब है, और ये अपने आप को प्रकट करता है। पूरे पुराने नियम में आप देखेंगे बहुत से लोगों ने मलाक, हामिल अल मलाक का दर्शन पाया। अर्थात वो जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है वो थियोफनी है, वो इटर्नल जीसस है, एवर लास्टिंग जीसस है। वो इटर्नल जीसस अपनी उस जलाली देह में, जो मरियम की कोख में आने से पहले उसके पास एक जलाली देह है। हालेलुया। वो अलग अलग समय अपने आप को प्रकट करता है। यीशु मसीह पिता का संपूर्ण प्रतिबिंब है। उसके वजूद, उसके स्वरूप की छाप है, उसका एक्सप्रेस इमेज है, उसका संपूर्ण प्रगटीकरण है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन साथ में लिखा है उसका इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है। यीशु मसीह निकुदेमुस से ये बातें कर रहा है। सुनिए ध्यान से, क्या कह रहा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहा कभी किसी ने पिता को नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। यीशु मसीह कहता बल्कि उसका पुत्र, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। यीशु मसीह ने देह धारी है। यीशु मसीह इंसानी देह में उस समय पृथ्वी पे निकुदेमुस से बातें कर रहे हैं, लेकिन निकुदेमुस को ये भी कह रहे हैं कि उसका इकलौता पुत्र जब निकुदेमुस के साथ पृथ्वी पे बातें कर रहा है, उस समय वो पिता की भुजम में भी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले वचन में क्या लिखता है? इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ल्ड वॉज गॉड। In the beginning was the word and the word was with God and the word was God। अनादि में शब्द था, वचन था। हालेलुया। उसे लोगोस कहा गया ग्रीक में, उसे अरमिक में मामरे कहा गया है। मामरे, उसे हिंदी में हम शब्द कहते हैं। वो अनादि शब्द, हालेलुया, अनंत काल में, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड, और वो मामरे पिता के साथ था। एंड दैट मामरे, दैट वर्ड वॉज गॉड। आपको मालूम द वर्ड वॉज गॉड के लिए जॉन ग्रीक में क्या लिखता है? जॉन लिखता है मानो जीनास। ही वॉज गॉड मानो जीनास। मानो का मतलब होता है सेम, वन। जीनास का मतलब जीन्स। यीशु मसीह और पिता दोनों के एक जीन है। पिता का जीन डीएनए, आरएनए, और यीशु मसीह का डीएनए, आरएनए दोनों एक हैं। पिता और पुत्र दोनों का जीन एक है। मानो जीनास ग्रीक वर्ड, एक जीन से हैं, एक वजूद, एक अस्तित्व है। हालेलुया। जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पुत्र में पिता और पिता में पुत्र है। यीशु मसीह फिलिप्पुस से कहते हैं, मैं कितने समय से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जीसस एंड याहवे, दे आर मानो जीनास। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने पिता को प्रकट किया है। Hallelujah. The only begotten Son who is in the bosom of the Father
has revealed the Father. But the word for revealed that John uses is a very profound word. हालेलुया। जो पुत्र जो पिता की गोद में उसने पिता को प्रकट किया है, जो शब्द है प्रकट किया, उसके लिए ग्रीक वर्ड है एक्जेगियोमाए। सुनिए ध्यान से, एक्जेगियोमाए का मतलब क्या होता है? बहुत ही पावरफुल वर्ड है। जैसे आपके घर में पिकासो की, माइकल एंजेलो की, किसी बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट की कोई पेंटिंग दीवार पे लगी हो, और एक कोई बड़ा पेंटर आपके घर में आए और वो कहे कि मैं ऐसी एक पेंटिंग आपके लिए और बना सकता हूँ, और वो आपसे कहे प्लीज़ आप 3-4 घंटे के लिए ज़रा घर से बाहर जाएं, मुझे अकेले को कमरे में काम करने दें। आप 3-4 घंटे के लिए चले जाओ और जो पेंटिंग आपके घर की दीवार पे टंगी है, बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग वो पेंटर बनाने लगे, और जब आप 4-5 घंटे के बाद लौट के घर में आओ तो आप आके देखो कि आपकी दीवार पे 2 पेंटिंग है। जो पिकासो ने पहली पेंटिंग बनाई थी बिल्कुल उसके जैसी हू बहू पेंटिंग, एग्जैक्ट पेंटिंग जो पहले बनी है ओरिजिनल पिकासो की, बिल्कुल वैसी एक और पेंटिंग आपकी दीवार पे टंगी है, और इस कदर वो दोनों एक जैसी हों कि आप पहचान ही ना पाओ कि पहले वाली ओरिजिनल कौन सी है। यह है एक्जेगियोमाए। पिता और पुत्र दोनों का स्वरूप एक है, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। तो पुत्र अपने आप को प्रकट करता है पिता के बिहाफ पे। बाइबल में अलग अलग जगह लोग उसे देख रहे हैं, उसके जलाल को देख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है जो मैं वचन आपको दे रहा हूँ, एक्सोडस 24 में यहाँ पे लिखा है इसके 10 वचन में, एंड दे सॉ गॉड ऑफ इजराइल एंड दे वॉज अंडर हिज फीट एज इट वॉज द पेव्ड वर्क ऑफ ए सैफायर स्टोन एज इट वर द बॉडी ऑफ हेवन इन हिज क्लियरनेस। स्वर्ग साफ साफ दिखाई दे रहा है, स्वर्ग का राजा अधिराजा दिखाई दे रहा है। और आगे 11 वचन में लिखा है, एंड अपॉन द नोबल्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल laid not his hand and they saw God and did eat and drink। यहोवा ने उनके ऊपर अपना हाथ नहीं उठाया, और ये सभी लोगों ने यहोवा की हजूरी में क्या किया? फेलोशिप मील खाया भाई और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में खाना खाया और पिया। स्वर्ग में उस पहाड़ के ऊपर जहाँ ये लेविटेट करके चले गए, उस पहाड़ में जहाँ स्वर्ग का पोर्टल खुल गया, जहाँ यहोवा राजाधिराजा विराजमान था, उसकी हजूरी में ये लोग चले गए। इन्होंने उसे अपनी आँख से देखा, और 70+4 लोगों ने यहोवा परमेश्वर के चरणों में उसकी आराधना की, और दे हैड फेलोशिप मील, दे हैड डिनर टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। यहोवा की हजूरी में खाया और पिया। हालेलुया। एक बड़ी अद्भुत बात है, आप पढ़िएगा, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा ये सारा नैरेटिव। ये 70 लोग वापस उतर के नहीं आए पहाड़ से। Moses, Aaron and Abihu and Nadab, they came back, but these people never came back. 70 never came back. Hallelujah. बहुत अद्भुत और गहरी बातें परमेश्वर के कलाम में है जो हम नहीं जानते, और नहीं जानना तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन कई बार लोग उनकी खोज भी नहीं करना चाहते अपने जीवन में, उन्हें ढूंढना नहीं चाहते, उनकी खोज नहीं करना चाहते। हालेलुया। अब मैं आपको इसी में आगे लेके आना चाहता हूँ 24 चैप्टर ऑफ एक्सोडस, उसकी 16 वचन में आपको लेके जाना चाहता हूँ। 24 का 16 सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड अबोर्ड अपॉन माउंट साइनाई एंड क्लाउड कवर्ड इट 6 days, एंड द 7th day he called unto Moses out of the midst of the cloud, and the sight of the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel. Moses went into the midst of the cloud, and he gat him up into the mountain, and Moses was in the mountain 40 days and 40 nights. Hallelujah.
24 का 26। हालेलुया। I don't know, I just sense like there is an earthquake happening. I just had kind of a foreboding. चलिए खैर हम वचन की ओर चलें। और तो यहाँ पे क्या लिखा है 16 में, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड अबोर्ड अपॉन माउंट साइनाई। यहोवा का जलाल सिनई पहाड़ पे था और 6 दिन तक यहोवा के जलाल ने उस पहाड़ को कवर करके रखा। 6 दिन कोई कुछ नहीं बोला, खामोश रहे यहोवा के हजूर में। और क्या लिखा है, 7th डे द लॉर्ड कॉल्ड मोजेस आउट ऑफ द मिड्स ऑफ द क्लाउड। 7वें दिन यहोवा मूसा को आवाज़ लगा के पुकारता है। अब सुनिए ध्यान से, मैं आपको नए नियम में लेके जाना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ नए नियम में। हालेलुया। नए नियम में आइएगा। हालेलुया। और मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसके मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय में आपको लेके चलता हूँ। मत्ती 16 में चलिएगा। मत्ती 16 उसके 24 वचन से आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से। देन सेड जीसस अनटू द डिसाइपल्स, हालेलुया, इफ एनी मैन विल कम आफ्टर मी, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ एंड टेक अप हिज क्रॉस एंड फॉलो मी। यीशु मसीह निर्धारित कर रहे हैं कीमत जो यीशु मसीह के चेले को देनी पड़ेगी। यीशु मसीह को अपना गुरु बनाने के लिए जो मूल्य देना पड़ेगा वो बता रहे हैं यीशु मसीह। क्या है वो? इफ़ एनी मैन विल कम आफ्टर मी, यदि कोई मेरे पीछे आए, हालेलुया, यदि कोई मेरे पीछे आए तो वो क्या करे? डिनाई हिमसेल्फ, अपने आप का इनकार करे, एंड टेक अप हिज क्रॉस एंड फॉलो मी, अपने आप का पहले इनकार करे फिर अपना क्रूस उठाए। आपने यीशु मसीह का क्रूस नहीं उठाना है, उसे कोई नहीं उठा सकता। आपको अपना क्रूस उठाना है, लेकिन क्रूस उठाने से पहले आपको अपने आप का इनकार करना है। यू कैन नॉट प्रमोट योर सेल्फ, यू कैनॉट make self-promotion of who you are, but rather you have to go in a contrary path. You have to deny yourself. You do not endorse yourself. You do not seek validation of yourself, but rather you go the contrary way of denying yourself. And after you learn to live the life of self-denial. सेल्फ डिनाइल समझते हैं? अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे आप, यीशु मसीह को ऊंचा कर रहे हो अपने जीवन से। आपके जीवन का उद्देश्य सेल्फ प्रमोशन नहीं, अपने आप को ऊंचा करना नहीं, अपने टैलेंट्स को शोकेस करना नहीं, अपनी एबिलिटी को, अपनी नॉलेज को, अपने करिश्मा को शोकेस करके, उनकी परेड करके अपने आप को ग्लोरीफाई करना, ऊंचा उठाना, उन सब का एडवांटेज लेके अपनी मार्केटिंग करना, अपनी सेल्फ प्रमोशन करना, इसके बिल्कुल विपरीत है यीशु मसीह का मार्ग। बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है यीशु मसीह का राह। अपने आप का इनकार करना, अपने आप के इनकार में आप अपने स्वामी को एक्नॉलेज करते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह डिसाइपलशिप की एक बड़ी भारी कीमत मांगते हैं। मालूम है आपको, यदि कोई किसी को अपना गुरु बनाता है, जैसे हमारे देश में भ्रांति है कि पैसे दे के मसीह बनाते हैं, क्रिश्चियन करते हैं। भाई और बहनों, यीशु मसीह अद्भुत गुरु है। हालेलुया, सृष्टि का अद्भुत गुरु। और ये गुरु शिष्य बनाता है जब, तो गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है।
सच्चा गुरु, सच्चा शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है। जैसे हम भारत में कहानी पढ़ते हैं ना, एक गुरु ने एक बहुत ज़बरदस्त धनुर्धारी से अंगूठा मांग लिया था, राइट थंब मांग लिया था, और उस शिष्य ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में दे दिया तुरंत। तो वो गुरु तो केवल एक राइट थंब मांगता है, ये जो बाइबल का अद्भुत गुरु है ये आपका संपूर्ण जीवन मांगता है। पूरे का पूरा जीवन मेरी जगवेदी पे रख, मेरी ऑल्टर पे रख, एट द फुट ऑफ द क्रॉस ले डाउन योर होल लाइफ, और अपने संपूर्ण जीवन पे मुझे प्रभुता करने दे प्रभु। ये अद्भुत गुरु गुरु दक्षिणा में अंगूठा नहीं मांगता है, ये अद्भुत गुरु गुरु दक्षिणा में आपका संपूर्ण जीवन मांगता है। जब आप अपना जीवन इसे दे देते हैं संपूर्ण, फिर प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री में क्या कहता है? प्रेरित पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा, मैं मसीह के संग क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, वरन प्रभु मुझ में जीवित है, और जो जीवन अब मैं जी रहा हूँ ये मेरा जीवन नहीं है, ये यीशु मसीह का जीवन है, जो यीशु मसीह मेरे अंदर जी रहा है। तो ये पथ है भाइयों, सच्चा पथ। ये आज की प्रॉस्पेरिटी सूडो गॉस्पल वाला मार्ग नहीं है जो चर्चेस के अंदर सिखाया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये वो पथ नहीं है, ये है सच्चा पथ जो बाइबल में यहाँ लिखा है। हालेलुया। इफ एनी मैन विल कम आफ्टर मी, let him deny himself and take up his cross and follow me. Whosoever will save his life will lose it, and whosoever will lose his life for my sake will find it. When you absolutely lay down your life and you are able to relinquish all your rights, and when you are willing to just lay down your life so that your life is totally taken up in his hands, and he can plant it in the soil like a seed, and seed is totally decimated inside the soil, then the genome that is right inside the seed, the DNA and the RNA, springs forth and new life busts out. Hallelujah. ये है प्रभु का मार्ग। और प्रभु क्या कहते हैं, इसका 26 वचन पढ़िए। For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? हालेलुया। भाई और बहनों, संसार की मटेरियल चीज़ों को हासिल कर लेना सुसमाचार नहीं है। समझ रहे हैं? प्रभु इसके उलट कह रहा है, यदि संसार की सभी चीज़ों को हासिल भी कर ले और अपनी जान का नुकसान करे, उसे क्या फ़ायदा? लिखा, फॉर द सन ऑफ मैन शैल कम इन हिज ग्लोरी, द ग्लोरी ऑफ हिज फादर विद हिज एंजल, and then he shall reward every man according to his works. सबको उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। इसके विषय में कोई टीचिंग नहीं देता है कि आपके कामों के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा, इसकी कोई टीचिंग नहीं है। हाइपर ग्रेस थियोलॉजी ने ऐसा खा लिया लोगों को। अब देखें प्रभु क्या कहते हैं 28 वर्स में। Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom. हालेलुया। यीशु मसीह एक बड़ी स्टैगरिंग स्टेटमेंट, एक बहुत स्ट्रेंज स्टेटमेंट यहाँ देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, Verily I say unto you, there be some standing here. यहाँ पे कुछ ऐसे खड़े हैं जो मौत का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक वो मनुष्य के पुत्र को अपनी बादशाही में आता देख ना लें। देखिए कितनी अद्भुत बात यीशु मसीह यहाँ कहते हैं। ये पूरी डिसाइपलशिप की सख्त शिक्षा देते देते यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पे कुछ खड़े हैं जो मौत का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक वो मनुष्य के पुत्र को उसकी बादशाहत, उसकी किंगडम और उसके जलाल में ना देख लें। अब मैं आपको एक पैरेलल देना चाह रहा हूँ। मैंने आपको वचन दिया 24th चैप्टर ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसके 24 अध्याय में से मैंने बताया आपको कि कैसे वो 70 एल्डर मोजेस, एरन और अबीहू नदाब, ये 74 लोग यहोवा के जलाल में रहे और कैसे इन्होंने वहाँ पे जाके खाया पिया भी, फेलोशिप मील किया परमेश्वर की हजूरी में।
और फिर मैंने आपको बताया एक्सोडस 24:16 में कि 6 दिन तक जब वो दोबारा आ गए, 6 दिन तक वो जलाल का बादल छाया रहा, 6 डेज तक। ग्लोरी परमेश्वर की ने उस टॉप को, पिनेकल को, उस माउंटेन के कवर करके रखा 6 डेज तक। अब देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 16 के 28 में यीशु मसीह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि तुम में से कुछ हैं जो मौत का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक मनुष्य के पुत्र को अपने जलाल में, अपनी बादशाही में आता ना देख लें। ये बात यीशु मसीह कह रहे हैं। अब आए मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में, मैथ्यू गॉस्पल चैप्टर नंबर 17, मैथ्यू 17 वर्स नंबर 1। अब देखें ध्यान से। एंड आफ्टर 6 डेज, कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद। हालेलुया। 6 दिन पहले यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट दी कि यहाँ पे कुछ खड़े हैं जो मौत का स्वाद नहीं चखेंगे, वो मनुष्य के पुत्र को उसके जलाल में और उसकी बादशाही के महिमा में आते हुए देखेंगे। और एग्जैक्ट 6 दिन के बाद, जैसे हम पढ़ते हैं एक्सोडस 24:16 में, 6 दिन तक जलाल छाया रहा। जब 7वां दिन आया, अब देखिए 7वां दिन आया 6 दिन के बाद, मत्ती 17 के पहले वचन में, एंड आफ्टर 6 डेज जीसस टेकeth पीटर जेम्स एंड जॉन हिज ब्रदर एंड ब्रिंगeth them into an high mountain apart। हालेलुया। जैसे यहोवा के उस पवित्र पहाड़ पे उसके जलाल में 6 दिन तक जलाल छाया रहा और 7वें दिन मोसेस ऊपर चढ़ गया, वैसे ही यीशु मसीह 6 दिन के बाद, हालेलुया, सेम पैरेलल, अपने 3 खास चेलों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को अद्भुत रीति से पहाड़ पे ले गया। और जब उस पहाड़ पे गया यीशु मसीह, आपको मालूम ये हरमन पहाड़ है और ये वही पहाड़ है जहाँ पे वॉचर उतरे थे, 200 वॉचर जिन्होंने स्त्रियों के साथ उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में संबंध बनाया। यीशु मसीह जहाँ पे पताल के फाटक हैं, जो वॉर जोन है, जीरो ग्राउंड है, वहाँ पे जाके अपने जलाल की घोषणा कर रहा है यीशु मसीह। लिखा है एंड वॉज ट्रांसफिगर्ड बिफोर देम। यीशु मसीह जलाली हो गया, यीशु मसीह अपने एलिमेंट में आ गया, यीशु मसीह वो बन गया जो वो है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मरियम की कोख में इंसानी फ्लैश की एक चादर ओढ़ी है, लेकिन वो चादर के बाहर जलाल फूट के निकल आया जब यीशु मसीह उस पहाड़ पे गया। हालेलुया। उनके आगे ट्रांसफिगर्ड हो गया यीशु मसीह, ट्रांसफिगर्ड, मेटामॉर्फिया, यीशु मसीह जलाल में तब्दील हो गया। यीशु मसीह की देह जलाली हो गई। यीशु मसीह की देह ये 5 सेंसेस वाली नहीं रही, यीशु मसीह की देह स्वर्गीय देह, जलाली देह में यीशु मसीह तब्दील हो गया। ट्रांसफिगर्ड बिफोर देम एंड हिज फेस डिड शाइन एज द सन। सूर्य की तरह प्रचंड यीशु मसीह का चेहरा दमकने लगा। यीशु मसीह की देह में से रोशनी फूट के निकलने लगी। यीशु मसीह की देह जलाली हो गई। यीशु मसीह का शरीर नूर से भर गया। यीशु मसीह का चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा। एंड हिज रेमेंट वॉज वाइट एज लाइट, और नूर की तरह उसके वस्त्र हो गए। यीशु मसीह नूर में, यीशु मसीह जलाल में, हालेलुया, नूरानी हो गया। हालेलुया। पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों की आंखों के आगे। और यहाँ के 3 वचन में लिखा है बिहोल्ड देयर अपीयर्ड अनटू देम मोसेस एंड एलियास टॉकिंग विद हिम। और उसी समय क्या हुआ? स्वर्गीय पोर्टल खुल गया। हालेलुया। द अर्थ इंटरसेप्टेड हेवन, स्पिरिट रेल्म वॉज ओपनड अप। रूहानी दुनिया खुल गई उस समय उस पहाड़ के ऊपर, और मोसेस और एलिजा प्रकट हुए। और वो क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के संग बातें कर रहे हैं। मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह के संग बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था कुछ हैं जो मौत का मुंह नहीं देखेंगे जब तक वो बादशाही को ना देख लें, किंगडम को ना देख लें, और परमेश्वर के जलाल को ना देख लें। यीशु मसीह अपनी किंगडम में आ गया, बादशाही में। हालेलुया। जलाली रूप में आ गया। आपको मालूम यीशु मसीह कई मर्तबा जलाली रूप में आया बाइबल में। जब वो यीशु मसीह को पत्थर मार मार के मारना चाहते थे, यीशु मसीह उनके बीच में से निकल गया जलाली होके। फिर जब वो यीशु मसीह को पहाड़ की चोटी पे ले गए, नीचे गिराना चाहते थे,
यीशु मसीह जलाली होकर उनके बीच में से निकल गया। यीशु मसीह 100% परमेश्वर है भाई और बहनों। He can move into his element whenever he wants because he is God. He never ceased to be God, even though he chose not to use the prerogative of being God. He laid aside his right as God. He emptied himself. He took the form of a man. He became a servant, a doulos servant, and he remained obedient to God, and even until the death on the cross. He remained in human limitation, but whenever he deemed it was necessary for him to break that shell, he did break it because he is always God. Whenever people came and fell at his feet and worshipped him, he did acknowledge worship because he is God. He cannot cease to be God. Hallelujah. He chose to be man. You know, Jesus' favorite, यीशु मसीह अपने आप को अपने मुंह से क्या कहता है? जो फेवरेट टाइटल अपने नाम के साथ यीशु मसीह कौन सा लगाता है मालूम आपको? सन ऑफ मैन। पृथ्वी पे इंसान तो बड़े फैंसी टाइटल लगाते हैं ना, बिशप, आर्च बिशप, ओवर आर्चिंग बिशप, हिज होलीनेस, मोस्ट रेवरेंड, मोस्ट राइट रेवरेंड, और बड़े बड़े मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, फलाना ढिमका, बहुत से लगाते हैं एंटाइटलमेंट। यीशु मसीह जो अपने नाम के आगे लगाता था, आपको मालूम सबसे ज़्यादा चेरिश क्या करता था? अपने आप को कहना सन ऑफ मैन। बार बार यीशु मसीह अपने आप को कहता है सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन। जो सन ऑफ मैन है पृथ्वी पे, वो अपने आप को बड़े फैंसी टाइटल लगा के अपने नाम के आगे अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं। लेकिन जो सृष्टि का स्वामी है, जो गॉड है, ही बिकेम मैन एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ द सन ऑफ मैन। हालेलुया। देखिए कितना अद्भुत और निराला यीशु मसीह। हालेलुया। मूसा और एलिया दोनों यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं। चौथे वचन में, देन आंसर्ड पीटर। Peter is always very impetuous. Peter is a very volatile kind of character. He is very unpredictable, and he is always jumping to make conclusions, always trying to be the in charge. He is kind of a control freak person. He wants to control situation, and he makes very, very hasty statements in the entire narrative of Matthew, Mark, Luke, John. There is such a glorious phenomena happening. Peter, James and John should have been quietly drinking from that fountain. They were already in the kingdom. They are seeing the kingdom with their naked eyes. They are seeing a divine portal opened up. They are seeing the earthly trajectory intercepting the heavenly domain. They are seeing glory all around. They are seeing Jesus, the exalted one. Why shouldn't he just keep his mouth shut and just, continue to behold that majesty? But what did Peter say? He said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, one for Moses and the other for Elias. बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर मानते हैं कि ये फीस्ट ऑफ टैबरनेकल थी। फीस्ट ऑफ टैबरनेकल का समय था, झोंपड़ियों के पर्व का, जिसमें बूथ बनाए जाते हैं, झोंपड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो पीटर जीसस को सजेस्ट करता है कि 3 बूथ बनाए हम। पीटर की गलती क्या है? पतरस यीशु मसीह के बराबर मूसा और एलिया को ट्रीट कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह सृष्टा है, मूसा और एलिया सृष्टि किए गए उसके दास हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह को नबियों के साथ, संतों के साथ, बाइबल के उन महान पैट्रियार्क के साथ एक तराजू में नहीं तोल सकते। यीशु मसीह अद्भुत है, वो सृष्टा है भाई और बहनों, वो सृष्टि का स्वामी है, वो ब्रह्मांड का मूल है, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, वो मार्ग, जीवन और सत्य है, वो स्वर्ग से उतरी जीवन देने वाली रोटी है, वो जगत का उजियाला है भाई और बहनों। उसका नाम इमैनुअल है, उसके कंधों के ऊपर प्रभुता है, वो अब्दियत का बाप है। हालेलुया। वो लिली ऑफ द वैली है। हालेलुया। वो हालेलुया फेयर अमंग 10,000 है। वो परमेश्वर की सारी सृष्टि का मूल है, वो सृष्टि का रचिता है, वो ब्रह्मांड को अपने अद्भुत
शब्दों की सामर्थ्य के द्वारा थाम के रखता है। वो मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहलौठा है। वो पूरी कायनात का प्रतिबिंब है। वो परमेश्वर की संपूर्ण महिमा की छाप है, उसका प्रतिबिंब है। हालेलुया। वो अद्भुत है, अगोचर है, अनोठा है, अजन्मा है, उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। उसके समकक्ष किसी को नहीं ला सकते आप। तो जब पतरस ये बात कहता है, वाइल ही स्पेक बिहोल्ड ए ब्राइट क्लाउड ओवरशैडोड देम एंड बिहोल्ड अ वॉइस आउट ऑफ द क्लाउड विच सेड, देखिए अब वो पहाड़, वचन में क्या लिखा है, 6 दिन तक पहाड़ के ऊपर जलाल का बादल छाया रहा और आग थी और अंधेरा था और बिजलियां कड़कती थी। 7वें दिन यहोवा बोला। 6 दिन तक जलाल छाया हुआ, जलाल का बादल। वही सेम चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे। हालेलुया। यीशु मसीह जलाल में है और एलिया और मूसा उसके साथ बातें कर रहे हैं। और जब पीटर कुछ बोलता है तो हेवन उसे इंटरप्ट करता है। जब ये बोल ही रहा था तो लिखा है ब्राइट क्लाउड ओवरशैडोड देम, एक अद्भुत जलाल का बादल आ गया। एंड वॉइस आउट ऑफ द क्लाउड, उस बादल में से यहोवा की आवाज़ आ रही है, विच सेड दिस इज़ माई बिलवड सन इन whom आई एम वेल प्लीज्ड। ये मेरा प्यारा पुत्र है, मैं इसमें प्रसन्न हूँ। हियर ई हिम, इसकी सुनो, अपनी मत बोलो, इसकी सुनो। हालेलुया। पुत्र जलाल में एलिया मूसा के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है और पिता क्लाउड में से बोल रहा है। हालेलुया। एंड जीसस केम एंड टच, यहाँ पे लिखा है एंड व्हेन द डिसाइपल्स हर्ड इट दे फेल ऑन देयर फेस एंड दे वर सो अफ्रेड, वो डर गए और गिर गए मुंह के बल। तब प्रभु यीशु मसीह आया। यहाँ पे क्या लिखा है, देन जीसस केम एंड टच देम and said, arise and be not afraid. And when they had lifted up their eyes, they saw no man save Jesus only. Hallelujah. Hallelujah. भाई और बहनों, यहोवा के जलाल को लोगों ने देखा है। यहोवा के जलाल को आप देखते हो, आप देख सकते हो। यहोवा के जलाल में, उसकी मैनिफेस्ट ग्लोरी में आप एंटर कर सकते हो। हालेलुया। यीशु मसीह यहोवा पिता की मैनिफेस्ट ग्लोरी है, मैनिफेस्ट जलाल है। हालेलुया। आपको मालूम, बाइबल में एक फॉल्स टीचिंग है जिसे यूहन्ना अपनी पत्री में जिसका खंडन करता है। उस फॉल्स डॉक्ट्रिन, फॉल्स टीचिंग का नाम है मार्सियनिज्म। मार्सियन नाम का एक अर्ली चर्च फादर था जो ये सिखाने लगा कि ओल्ड टेस्टामेंट का परमेश्वर और है और न्यू टेस्टामेंट का परमेश्वर और है। ओल्ड टेस्टामेंट का परमेश्वर बहुत एंग्री वाला परमेश्वर है, न्यू टेस्टामेंट का वाला परमेश्वर बहुत जेंटल है। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा पिता और प्रभु यीशु मसीह दोनों एक हैं और दोनों अलग अलग भी हैं। हालेलुया। पुराने नियम में 2 यहोवा हैं, यहोवा पिता, यहोवा पुत्र। हालेलुया। और यहोवा का इकलौता पुत्र यीशु नासरी, हालेलुया, यहोवा के जलाल को प्रकट करता है, यहोवा की महिमा को, यहोवा की गरिमा को प्रकट करता है। वो उसके स्वरूप का प्रतिबिंब है, वो उसकी महिमा का संपूर्ण प्रगटीकरण है। इकलौता पुत्र जो पिता की भुजम में है, उसने पिता को प्रकट किया है। उसकी गोद में, क्लोपस ग्रीक वर्ड है, बिल्कुल इंटीमेट है, जो उसने जगत को पिता दिखाया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता में और पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। हालेलुया। इट्स ऑल अबाउट जीसस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पुराने नियम में वो अलग अलग जगह अपने आप को प्रकट कर रहा है। हमारा पुरखा इब्राहिम दोपहर की वेला 18 अध्याय जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस में अपने टेंट के बाहर जब बैठा है, 3 पुरुषों को देखता है। 2 एंजल हैं लेफ्ट राइट पे, सेंटर में जीसस क्राइस्ट है जिसके आगे झुकता है, वो जिसको सजदा करता है। एंजल को सजदा नहीं करता वो। 19 चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे जेनेसिस 19 उसकी फर्स्ट वर्स में, और 18 चैप्टर जेनेसिस में वो उनके लिए खाना बनाता है। जीसस और एंजल भी खाना खाते हैं। फिर
यीशु मसीह से बातें करता है। इब्राहिम हमारा पिता इंटरसीड करता है। यदि 50 लोग हों, यदि 40 हों, यदि 30 हों, 20, वो 10 तक आता है। आपको मालूम 10 तक क्यों आता है? इब्राहिम ने कैलकुलेट किया है, लूत की 2 बेटियों की मंगनी हुई है, शादी होने वाली है। उनके 2 पति हैं, उनमें से एक उसके पतियों के पेरेंट्स हैं 2-2, तो सबको कैलकुलेट कर लो, 10 लोग बनते हैं। अगर वो 10 रिस्पॉन्ड करते, यहोवा क्षमा करता, लेकिन वो लूत के संग आए नहीं। वचन में लिखा है, दे कंसिडर्ड लॉट वॉज मॉकिंग, दे कंसिडर्ड हिम स्टूपिड व्हेन ही सेड दैट देयर इज फायर going to be poured out from the Lord and Sodom and Gomorrah are going to be annihilated. They didn't believe. Hallelujah. तो एंजल चले जाते हैं 19 चैप्टर की 1st वर्स में, and it was Jesus that Moses was talking. इसीलिए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 2 में स्टीफन का मैसेज है। स्टीफन कहता है, आवर फादर बिफोर ही लिव्ड इन द लैंड ऑफ मेसोपोटामिया, गॉड ऑफ ग्लोरी अपीयर्ड अनटू हिम। जलाली परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और जिसने उसको दर्शन दिया हमारे पुरखे इब्राहिम को, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय की आखिरी 5 आयतें पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे पुरखे इब्राहिम ने मेरे दिन को देखना चाहा और उसने देखा। हालेलुया। समसून की माता को वही दिखाई देता है जब वो खेतों में काम कर रही होती है। समसून की माता और पिता उसे खाना भी देते हैं, भेंट भी चढ़ाते हैं। वो यीशु मसीह है भाई और बहनों। यहोशू उस नगर के बाहर खड़ा है और उसके आगे खड़ा है यहोवा की सेनाओं का सेनापति यीशु नासरी। यीशु नासरी आया क्योंकि यरीहो शहर जीता नहीं जा सकता था इंसानी ताकत के द्वारा। यीशु मसीह उनके संग गया 7 दिन, और यीशु मसीह ने, वो नफलीमों का शहर था, बड़े बड़े दैंत थे, वृक्षों जितने लंबे चौड़े चौड़े, जिन्होंने उसे बनाया था नफलीमों की फॉलन टेक्नोलॉजी से। यीशु मसीह उस पर विजय दिलाता है उन्हें। हालेलुया। वही जिसका हाथ दीवार पे लिखता है, मने मने तकेल उपसरेन। वही जो दानियल की मांद में शेरों के मुंह बंद करता है। ये वही है जो शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग की भट्टी में मिलने के लिए आता है। उसका नाम है यीशु मसीह। दबोरा और बराक की जब लड़ाई होती है, ये वही है जो जहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए जाता है, जो कर्ज करता है मेरोज को। तो भाई और बहनों, वचन पढ़ें, पूरे बाइबल में यीशु मसीह है, स्वर्गीय पिता का प्रतिबिंब। हालेलुया। सृष्टि का रचिता वही है, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न किया गया। सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके बिना उत्पन्न किया गया हो। हालेलुया। Thank you, Lord. We bless your name. Jesus, we bless you. We exalt you. Open our eyes, Lord, to see your glory and your majesty. Lord, to be drawn to you, to be enamored by you, to be wooed by your presence. Hallelujah. Captivate our hearts, Lord, by your power and draw us closer to you. Put the hearts of your people on a pursuit of your presence. May they pursue you alone. There is nothing worth pursuing in this world. Nothing of this material world can truly satisfy us. We were created by you. We were created for you. For Lord, in pursuing you, in seeking you persistently each day of our life, we find that divine joy and contentment. So Lord, put your people on that path of running after you. मैं तेरा खून तेरे लोगों पे छिड़कता हूँ। तेरे चेहरे के खोजी कर इन्हें खुदावन, तेरी हजूरी के खोजी। प्रभु, एक खाली चर्चैनिटी नहीं चाहिए, खाली चर्चे नहीं चाहिए, ईसाइयत के वो मजहबी काम नहीं चाहिए खुदावन। तू चाहिए हमें, तू चाहिए यीशु मसीह। तेरी पावन हजूरी, पवित्र हजूरी, तेरा जीवित कलाम, तेरा जिंदा लहू चाहिए खुदावंद। हाँ, तेरी साक्षात हजूरी चाहिए खुदावंद। तेरे पवित्र फरिश्तों का साया चाहिए खुदावंद। तेरे जिंदा कलाम की हजूरी चाहिए। हालेलुया। खुदावंद खोल, खुदावंद खोल हेवनली पोर्टल्स, खोल अपने लोगों के लिए। अपने कलाम को ज़िंदा कर, अपनी हजूरी को ज़िंदा कर खुदावन, ताकि मुर्दा क्रिश्चियनिटी से निकल के बाहर लोग तेरे दामन से जुड़ जाएं, तेरे लहू के दामन से जुड़ जाएं खुदावन। बरकत दे खुदावन। मेक योर पीपल फेड अप
विद डेड चर्चियनिटी, डेड क्रिश्चियनिटी। फेड अप हो जाएं खुदावंद ये और तुझे ढूंढें। हालेलुया। तेरे कलाम को, थियोलॉजी नहीं, तेरे जिंदा कलाम को तुझे जलाल देते हैं खुदावंद। एक एक जन को बरकत दे खुदावंद। मैं ये नाम तेरे हुजूर में लेता हूँ, लीना डेविडसन एंड हर फैमिली, विनोदनी क्रिश्चियन एंड हर फैमिली, बहादुर सिंह आकाश, अमरजीत कौर, साहिल, दर्शन सिंह, इंद्रप्रीत सिंह, साबी सुरजीत, एंजला डरोच, लॉर्ड हरपाल सिंह बाजवा, सुनीता गुरिया कंसवर, हरजीत सिंह एंड हिज वाइफ रजनी, रोजी सिंह, अमरीश कुमार, सुमन गुप्ता, वनीता चोपड़ा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, विनोद कृष्ण फ्रॉम कैनेडा, मीनू सूद फ्रॉम हिमाचल. Lord, I lift up these people before your throne of grace. Komal Masih from Delhi, Angela Droch from Britain, Lord, Paramjeet Singh, Parminder Singh, Lord Jesus, Karamjeet Kaur, and all the other one, Lord, whom their names I don't see. Brother Gupta from Mumbai, everybody, Lord, मैं तेरे खून के साए के नीचे लाता हूँ, तेरे लहू के साए, मैं अपने आप को तेरे लहू के साए। सब मिलके हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे घराने के लिए प्लीज़ एवरीबॉडी, एक दो पल के लिए प्रार्थना कीजिए। खुदावंद, मैं अपने घर को, घराने को, बच्चों को, बीवी को, सबको तेरे लहू में छिपाता हूँ, पूरे घराने को तेरे खून का बाड़ा बांधता हूँ अपने घर के इर्द गिर्द। तेरे लहू की कुदरत को खोलता हूँ इस घर में, तेरे खून की कुदरत का बहाव, तेरे खून की कुदरत का फाउंटेन बहे खुदावंद। खुदावंद, तेरे लहू की क्लेंजिंग, तेरे लहू की प्योरिटी, तेरे लहू की सामर्थ इस घर में बहे खुदावंद यीशु नासरी। तेरे लहू की जय जयकार, तेरे लहू की जय जयकार हो, तेरे पवित्र लहू की जय जयकार। मैं तेरे स्वर्गदूतों को खोलता हूँ इस घर में खुदावंद, तेरे जलाल को खोलता, तेरी हजूरी को खुदावंद, जॉय ऑफ द लॉर्ड को खोलता हूँ। परमेश्वर के आनंद से हमारे दिल भर दे, हमारा घर घराना भर दे खुदावंद, अपनी सामर से, अपनी पवित्रताई से, अपनी हजूरी से खुदावंद। हमारी आंखें हम तेरी ओर लगाते हैं। हालेलुया। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारें। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारें। आंखें हमारी प्यारे प्रभु जी, आंखें ज़मीं पर कैसा किया जो हमसे मिलन। प्यारे प्रभु जी, आके ज़मीं पर कैसा किया जो हमसे मिलन। ना जाने कब हो अब तुझसे मिलन, मुझको तो रूह में प्रतिदिन बढ़ाइए। आंखें हमारी खोलिए यीशु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारें। आंखें हमारी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। प्लीज़ देखिए दुखी लोगों को, विधवाओं को, अनाथों को, गरीबों को और उनकी सहायता कीजिए।
जो कुछ आप कर सकते हैं उनके जीवन में कीजिए, भलाई कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की।